Welcome to my channel, Learn with Dr. Chetna. Today I have taken up a poem that is part of class 12th English syllabus. The poem is My Mother at 66 and it's been composed by Kamla Das. Kamla Das was one of the most celebrated writers of Indian writing in English. She very often wrote about women-centric issues and also wrote about subtleties of human relationships. In this poem, My Mother at 66, she is describing her feelings when she looked at her old mother. जब उन्होंने अपनी मदर को देखा, वो बहुत ओल्ड थी और क्या उनकी फीलिंग्स थी, उन्हें क्या महसूस हुआ, वो उन्होंने इस पोयम में एक्सप्रेस किया है। और जो भी उन्होंने इस पोयम में एक्सप्रेस किया है, वो हर कोई, everybody who looks at her or his aged parents undergoes these kind of feelings. आपको भी वो फीलिंग्स होगी और मुझे भी वो फीलिंग जरूर होगी जब मैं अपने ओल्ड पेरेंट्स को देखूंगी. So my mother at 66, she is saying, driving from my parents' home to Cochin last Friday. That means she had come to her mother to spend some time with her and now she is going back to Cochin. वो अपनी मम्मी के घर कुछ टाइम स्पेंड करने आई थी, अब वो वापस कोचिन जा रही हैं. And the mother is sitting beside her in a car. मदर उसके बगल में कार में बैठी हुई है. And when she looked at her mother, what did she notice? जब पोएट ने अपनी मदर को देखा तो उन्होंने क्या नोटिस किया? The mother was dozed. That means she was sleeping. Open mouth. Her mouth was open because she was breathing through her mouth. और ओल्ड एज में ऐसा अक्सर होता है कि जब लोग सो जाते हैं तो वो अपनी माउथ से ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि उनके जो फेस की जो मसल्स होती हैं कि वो इतनी वीक हो जाती है कि उनका माउथ जो है खुद ही खुल जाता है जब वो सांस ले रहे होते हैं. Doze open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. तो जब उनके फेस पे उनकी नजर पड़ी, when the poet looked at her mother's face, what did she notice? That there was no color on her face. Her face has turned colorless. There was no glow. There was no brightness. There was no radiance on her face that was once visible when she was young. तो उनके फेस में उनकी यूथ वाला जो ग्लो था, उनकी जो यंग डेज का जो ग्लो था, जो ब्राइटनेस थी, रेडियंस थी, वो नहीं थी. और उनका फेस कैसा लग रहा था? उन्होंने उनके फेस को कंपेयर किया है कॉप्स, दैट मीन्स डेड बॉडी के कलर से. एशन मतलब ऐश का जैसा, राख का जैसा. दैट मीन्स इट वाज ग्रे इन कलर. जो रेडियंस जो होती है, जो एक ब्राइटनेस जो फेस में होती है, वो नहीं थी. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन. और जब उन्होंने अपनी मदर के कलरलेस फेस को देखा, ग्लोलेस फेस को देखा, ब्राइटनेस नहीं थी जिस फेस में, उसको देखा, तो अ फियर ऑक्यूपाइड हर माइंड. पेन ऑक्यूपाइड हर माइंड. उनके माइंड में पेन आ गया, उनके माइंड में फियर आ गया. द फियर दैट हर मदर मे सून बिड फेयरवेल टू द वर्ल्ड. जैसे उनकी मदर बहुत जल्दी ही इस दुनिया को अलविदा कह देंगी. ये पेनफुल थॉट उनके माइंड में आ गया. और दिस thought was frightening, this was painful, this was agonizing. Of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked. And then she realized that my mother has really turned old. And this was frightening. इससे उन्हें डर लगा. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. और जो ये ड्रेडफुल, फ्राइटनिंग, पेनफुल थॉट था, उनको डिस्टर्ब कर रहा था, उन्हें परेशान कर रहा था. सो टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम दिस फ्राइटनिंग, दिस पेनफुल, दिस एगोनाइजिंग थॉट, शी स्टार्टेड लुकिंग आउट. अपने माइंड को उस पेनफुल थॉट से डाइवर्ट करने के लिए शी स्टार्टेड लुकिंग आउट. एंड व्हाट डिड शी नोटिस? शी नोटिस्ड young trees sprinting. Sprinting means running. उन्होंने देखा कि बाहर ट्रीज थे जो बहुत ही फ्रेश और यंग थे और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे थे. आप जब भी whenever we are in a vehicle, we notice that the things at the either side of the road
appeared to be running in backward direction. तो वो भी ऐसे ही लग रहे थे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रीज दौड़ते हुए नजर आ रहे थे. Why the poet has used this image here? The poet has used this image to show the contrast, what was inside the car and what was there outside. Inside the car, mother was sitting. She was weak. She has become dull. She has lost all her energy. And there was no vigor, no zeal for life in her. While the trees were young and fresh and they were running. तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए जो मदर है वो डल हो गई है, वीक हो गई है, कलरलेस है, ग्लो नहीं है उनके फेस में, जबकि ट्रीज जो है वो यंग है, फ्रेश है और वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. दूसरा, जब ये ट्रीज दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, द ट्रीज आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहां भी पोएट ने एक टाइम के एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया है. दैट मीन्स द डेज ऑफ हर मदर आर नंबर्ड इन दिस वर्ल्ड. अब उनके पास बहुत कम दिन बचे हैं. दैट मीन्स टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट. दैट्स वाई पोएट हैज यूज्ड दिस image of trees sprinting. After that, poet is saying, merry children spilling out of their homes. Spilling मतलब कभी आपने पाइप से बहुत सारा पानी को एक साथ निकलते हुए देखा होगा, तो बहुत फोर्स के साथ आ रहा है. तो वो बच्चे जो merry children है, merry मतलब बहुत खुश, joyful, joyous children जो है वो घर से बाहर निकल रहे. They are rushing out with lots of energy. They are rushing out energetically and with excitement. But the mother is weak, dull, and there is no energy left in her mother. So both these images have been used to show the contrast, what is there inside the car and what is there outside the car. But after the airport's security check, standing a few yards away, अब वो एयरपोर्ट पहुंच गई, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक हुआ, एंड देन शी मस्ट हैव सेड बाय बाय टू हर मदर. नाउ देयर वाज अ डिस्टेंस बिटवीन हर मदर एंड द पोएट. अर्लियर दे वर सिटिंग इन कार साइड बाय साइड, बट नाउ दे आर एट अ डिस्टेंस. नाउ द पोएट वंस अगेन लुक्स एट हर मदर, एंड देन व्हाट शी नोटिसेस, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon. अब फिर से उनको देखा तो वो कैसी लगी? वैन. वैन मतलब जो वेनिंग मून कहते हैं, मतलब जो मून होता है वो उसकी जो लाइट होती है, जो उसका ग्लो होता है वो घटते हुए जाता है. या मून जो होता है वो पहले फुल साइज होता है, फिर धीरे 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 उसका साइज कम होता चला जाता है. इट डिक्रीजेस इन साइज. दैट्स व्हाई द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड वैन. पेल एज अ लेट विंटर्स मून. तो पोएट कह रहे हैं कि उनकी मदर भी अपनी एक फाइनल स्टेज में है, डिक्लाइन वाले स्टेज में है. हर कंडीशन इज डिक्लाइनिंग हर डे बाय डे. दैट्स व्हाई वैन यूज किया, क्योंकि जो मून होता है वो भी धीरे 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 छोटा होता चला जाता है फुल मून के बाद. एट अ वैन pale as a late winter's moon. And then the poet is saying late winters. Winter is symbolic of death. जो winter होता है वो death को symbolize करता है. और पोएट ने लिखा है कि जो लेट विंटर्स मून होता है वो बिल्कुल डल होता है, उसमें कोई लस्चर नहीं होता, कोई ब्राइटनेस नहीं होती, ग्लो नहीं होता, क्योंकि एयर में मिस्ट और फॉग होता है. Because of the presence of mist and fog in the air, the moon during late winters looks dull and colorless and glowless. And same is the condition of her mother, who has turned colorless and there is no glow and radiance on her face. She has lost all her energy. Her health is declining day by day. Winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. That familiar ache. So, उनको फिर से एक painful feeling आई. There was a feeling of pain, and that feeling of pain was similar to the feeling that poet has experienced when she was child. जब वो बच्ची थी, छोटी थी, तब भी उनको अपनी मदर से दूर होने में डर लगता था. शी हैड दिस फीलिंग
that she would lose her mother. उनको ये लगता था कि वो अपनी मदर से दूर हो जाएंगी या उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रहेंगी. That was her childhood's fear. But this time, this fear has come back again and this fear is real now. उस समय वो unknown का fear था, उस fear के बारे में वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी, नहीं जानती थी कि वो fear क्यों है. बट अब इस समय में जो उनको बचपन वाला फियर याद आ गया और ये फियर अब रियल है बिकॉज शी नोज दैट हर मदर वुड सून बिड फेयरवेल टू दिस वर्ल्ड, कि उनकी मम्मी बहुत जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह देंगी. बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा. एंड बिकॉज ऑफ दिस टर्बुलेंस इन हर माइंड, बिकॉज ऑफ दीज painful thoughts that were disturbing her, she only could say, see you soon, Amma. वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई. She could only utter these words that I would meet you soon, knowing very well that this may not be possible, but she was trying to assure herself. अपने आप को अश्योर कर रही थी, अश्योरेंस दे रही थी, कंसोल कर रही थी कि I will meet you soon, and at the same time she was trying to assure her mother too that I will meet you once again. But all I said was see you soon, Amma. All I did was smile, smile and smile. And poet could not utter more than see you soon. इसके अलावा वो कुछ बोल नहीं पाई because she has to contain her feelings inside her mouth, inside her heart. उनको अपनी feelings अपनी माँ को दिखानी नहीं थी. She did not want to reveal to her mother that so much of pain is going in her mind, that she is feeling so much pain to look at her mother, and she has this feeling that she won't meet her mother. तो ये जो feeling थी कि हो सकता है मैं आपसे ना मिलूं, हो सकता है आप ना रहें, ये फीलिंग जो उनके माइंड में चल रहा था, she did not want it to show to her mother, therefore she only smiled. And there is repetition of word smile, smile and smile to lay emphasis on the word, on the fact that she was not able to speak anything but see you soon, Amma, and this way she was trying to hide her painful feelings behind her smile. Now, I hope you have understood the poem very well. Now, let's discuss the figures of speech used in the poem. Here, poet is saying, ashen like that of a corpse. तो अपनी बॉडी को, अपनी मदर को डेड बॉडी के, अपनी मदर के फेस को डेड बॉडी के कलर से कंपेयर कर रही हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. अब यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज को यंग बोला है, स्प्रिंटिंग बोला है, तो ये एग्जाम्पल हो गया पर्सोनिफिकेशन का. और यहाँ पे लेट विंटर्स मून की तरह कंपेयर किया उन्होंने अपने मदर को, तो ये फिर से एग्जाम्पल है सिमिली का. और यहाँ पे स्माइल स्माइल स्माइल, ये है रिपीटिशन का एग्जाम्पल. रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस पोएट ने यूज किया है. एंड इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ माय चैनल, प्लीज subscribe, like and share it with other students.